Welcome back to College Dunia. We have Sunny Disraf with us who have achieved the most J aspirants dreamed about. It's AIR 19 in mains, AIR 31 in advanced, and a seat in IIT Bombay, most competitive branch, CSE. But beyond the marks and the range, he is an Olympiad qualifier who brings intellectual depth to his engineering journey. Hi Sanidhya, congratulations again for your JEE main success. Thank you very much. Could you walk us through your preparation journey, please? Like how did Yeah, you? sure. Like for the JEE mains examination. हाँ, yeah. So like how did you prepare? आपने prepare कैसे किया था? Like there are so many students जिनको preparation का ही steps नहीं पता कि कैसे prepare करें, कैसे हमको crack करना पड़ेगा, कैसे हमको अच्छा college मिलेगा. So I want you to just give a brief like how did you prepare? Like what's your plan? All right. So I'll just describe my journey. So like most of my journey till the end of class 12, like आप मान लो December या November तक, I hadn't distinguished my preparation into JEE mains or JEE advanced. What I was mainly focusing on was completing my syllabus. Like till November end, I had finished my entire till November end of class 12, I had finished my entire syllabus for class 11th and 12th, except for few JEE main related chapters like जैसे POC आपका होता है, then polymer भी एक chapter होता है वैसा. तो I had not done these chapters, but I had completed rest of my syllabus. So after finishing the syllabus, like in the months of November and December, I started targeting my preparation for the JEE mains in January. क्योंकि जो जेई मेंस का प्रिपरेशन इन जनवरी होता है उसमें थोड़ा अलग से करना पड़ता है. लाइक यू हैव टू स्टडी एनसीईआरटी इन डिटेल, क्योंकि एनसीईआरटी से रैंडमली उठा के कुछ भी पूछ लेते हैं. यू शुड बी थरो विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के एनसीईआरटी के रैंडम पॉइंट्स जो उन्होंने छुपा के रखे होते हैं इन द बुक, एंड कोचिंग में जनरली वो पढ़ाए नहीं जाते बिकॉज दे आर कंसिडर्ड ट्रिवियल और समथिंग लाइक दैट, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू. तो इसकी वजह से लाइक इन दोज months of November and December, like initial November, like मैंने I spent time on revising the entire class that day. मतलब जो अभी तक पढ़ा था, जो नोट्स बनाए थे, जो सब सॉल्व किया था, I revised all of that. And then in December, I started my mains preparation. Like I opened NCERTs for chemistry and physics के most of the chapters, went through it thoroughly. उसके कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए, जैसे फॉर केमिस्ट्री आई मेड शॉर्ट नोट्स सो दैट रिविजन के वक्त वो आसान हो पाए. वरना जनरली बार बार एनसीईआरटी खोलना, बार बार गोइंग अगेन थ्रू द सेम पेनिंग प्रोसेस इज वेरी टफ. सो इसके एक शॉर्ट नोट बना दिया ताकि बार बार एनसीईआरटी नहीं खोलना पड़े. आई हैव एवरीथिंग कंसाइज इन माय नोट्स. हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट एवरी डे आई यूज्ड टू गिव जेईई मेंस रिलेटेड टेस्ट. या तो कोचिंग का मॉक टेस्ट दे दिया, या तो जेईई मेंस का एक पीवाईक्यू दे दिया. तो जेईई मेंस पीवाईक्यूज वर समथिंग व्हिच वर मोर हेल्पफुल देन कोचिंग का मॉक टेस्ट, बिकॉज नो कोचिंग का मॉक टेस्ट कैन रेप्लिकेट द एक्चुअल जेईई मेंस वाला फील. एंड जब आप पीवाईक्यू लिखते हो तो वो एक कॉन्फिडेंस भी देता है. जैसे कल को मैं बोलूँ कि जेईई मेंस लिखना, आपको एक अलग ही टेंशन, नर्वसनेस हर स्टूडेंट के माइंड में अंदर आती है. That tension and nervousness can be overcome only by writing the PYQs as exams itself. तो मैं CBT पे सारे PYQs दिया हूँ 2024 के. तो those were very helpful. Like उसके बाद से I gained a confidence कि हाँ, मतलब अभी मैंने पूरा रिवाइज नहीं किया था सिलेबस, फिर भी जितना मेरे मसल मेमोरी में उसके हिसाब से आई कैन डू जेईई मेंस के क्वेश्चंस, एंड मैं आगे रिवाइज करूंगा, देन दिस स्कोर विल इंप्रूव ओनली, ये घट नहीं सकता है. तो दैट वुड गिव मी द कॉन्फिडेंस फॉर माय जैन अटेम्प्ट 2024 की PYQs को CBT की तरह देना. एंड देन हाँ, देन just few days before JEE mains, what I did was कि chemistry and physics के लिए I revised those short notes जो मैंने बनाए थे NCERT के, पूरी thoroughly I just went through them. For mathematics मैंने क्या किया, जैसे कुछ चैप्टर्स मेरे को थोड़ा कैलकुलेटिव लगते थे, वीक लगते थे, जैसे probability was one of them, PNC was one of them, उसके लिए JEE mains की PYQs सॉल्व किए. लाइक फॉर PYQs मैंने क्या किया था, 2024 के जो PYQs थे वो तो सारे बचा के रखे, सब पेपर की तरह के. जो ओल्डर PYQs है उसमें केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एक्सटेंसिवली सारे सॉल्व, because those PYQs contain theoretical facts. उनको solve करने में ज्यादा time भी नहीं लगता, and they contain a lot of theoretical facts जो JEE में बार बार पूछते हैं. So for inorganic organic I solved each of those PYQs. Physical, mathematics and physics में क्या किया, जैसे फिजिक्स में जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स है, जैसे मॉडर्न फिजिक्स हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गया, उनके लिए वो सॉल्व कर दिए, क्योंकि थ्योरेटिकल पॉइंट्स है उसके लेकिन, क्योंकि जो लॉजिकल वाली प्रिपरेशन है वो आई हैड डन टिल नवंबर जो मैंने किया था. अब मुझे थ्योरेटिकल पॉइंट्स चाहिए थे जो जेईई में पूछता है. तो फॉर दैट आई सॉल्व्ड फिजिक्स के थ्योरेटिकल चैप्टर्स की PYQs, एंड जो लॉजिकल चैप्टर्स भी थे व्हिच वर वीक या कैलकुलेटिव कैलकुलेशन में एरर्स होते हैं या कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं है, उनके भी आई सॉल्व्ड दोस PYQs. एंड इनफैक्ट वो हेल्प कर गया मुझे एडवांस में भी. लाइक एक बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रैक्टिस मुझे बहुत एक्सटेंसिव मिल गई उनके थ्रू. एंड फॉर फिजिकल केमिस्ट्री आल्सो आई डिड द सेम, एंड मैथमेटिक्स पे भी जैसे PNC प्रोबेबिलिटी मेरा वीक था, तो जेईई मेंस के एक्सटेंसिवली क्वेश्चन सॉल्व करना गिव मी अ बेसिक प्रैक्टिस फॉर जेईई मेंस तो DI एंड एडवांस में आल्सो इट वाज वेरी हेल्पफुल. हाँ, सो दिस वाज हाउ आई अप्रोच माय जर्नी टिल जैन का जेईई मेंस.
तो कुछ मिथ्स होते हैं लाइक टॉपर्स से रिलेटेड कि दे आर लाइक कि 24 घंटा पढ़ते रहते हैं, है ना? दे डोंट हैव अ डिफरेंट लाइफ, दे जस्ट लॉक देमसेल्फ इन द लाइक रूम एंड देन दे ओनली स्टडी, सो इट इज अ मिथ और अ फैक्ट? कैन यू टेल मी? हाँ, यस आई कैन। इनफैक्ट मिथ्स खाली ये नहीं होते, इससे भी ज्यादा जो मिथ्स होते हैं, लाइक मिथ है मतलब पहले वो ही बोल देता हूँ, लेट्स क्लैरिफाई, ये ट्रू नहीं होता है। वी यूज टू प्ले लॉट ऑफ क्रिकेट, मतलब जैसे एग्जाम हो गया तो क्रिकेट खेल लेते थे, या बीच में भी एग्जाम लाइक लंच ब्रेक में भी वी यूज टू हैव ब्रेक्स इन कोचिंग, तो उसमें भी हम वी यूज टू प्ले अ लॉट, क्योंकि पूरा दिन पढ़ाई करके जस्ट नहीं हो पाता है, लाइक एग्जॉस्ट हो जाते हो आप। उसके अलावा सम फ्यू मिथ्स जो लोगों को लगता है आर लाइक टॉपर्स को कभी डिमोटिवेशन होता है, टॉपर्स को हमेशा हर चीज स्मूथली जाती है, उनको डाउट्स नहीं आते। दीज आर वेरी बिग मिथ्स, एंड इसका सबसे बड़ा इशू ये हो जाता है कि इसकी वजह से स्टूडेंट्स लूज देयर कॉन्फिडेंस, फिर दे डोंट आस्क डाउट, क्योंकि वो सोचता है अगर मैं टॉपर बनना चाहता हूँ मुझे तो डाउट्स ही नहीं आने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कुछ समझ नहीं आता है देन दे टेक इट ऑन देमसेल्व्स कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं शायद टॉपर मटेरियल हुई। ऐसा कुछ नहीं होता है, हमारे भी टेस्ट में नंबर बहुत गिरते हैं, बहुत मतलब बहुत गिरते हैं। उसकी वजह से बहुत बुरा भी लगता है, डिमोटिवेशन भी होता है। बट आई गेस जो डिफरेंशिएट करता है एक टॉपर को इज दैट हम फिर भी चलते हैं, वी डोंट जस्ट सिट बैक आफ्टर दैट डिमोटिवेशन, हम लोग काम छोड़ने देते हैं, मूव करते रहना पड़ता है। मतलब इट इज लाइक द मेन पॉइंट इज कीप मूविंग, कितने भी सेटबैक्स है, इफ यू कीप मूविंग देन देयर इज नथिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब हार्ड वर्क मेंटेन करना पड़ता है। मतलब अगर सेटबैक्स पर यू स्टॉप वर्किंग हार्ड, और लाइक जब तक कट ऑफ पॉइंट, मतलब इट्स लाइक ऐसा होता है जैसे कोई भी जेई की जर्नी होती है, तो पहले आप हार्ड वर्क करते जाते हो, आपको आउटपुट जीरो दिखता है, बिकॉज देर आर सर्टन थिंग्स जो भी होता है आउटपुट नहीं दिखता है। तो इसकी वजह से बहुत लोग क्या कर देते हैं, जब आउटपुट नहीं दिखता है दे जस्ट स्टॉप देयर जर्नी एंड उधर ही वही मिल जाता है। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू हैव दैट व्हाट, आपके अंदर वो ग्रिट होना चाहिए कि जब आउटपुट नहीं दिख रहा है तब भी वर्क हार्ड करो, एंड आफ्टर वन पॉइंट योर हार्ड वर्क इज शोन योर रिजल्ट, एंड उसके बाद यू वर्क मोर हार्ड, बिकॉज जब रिजल्ट दिखता है देन यू गेट द कॉन्फिडेंस कि हाँ मेरे से हो रहा है, एंड देन यू वर्क मोर। तो इसके वजह से यू नीड टू वर्क टिल दैट पॉइंट जब आपके रिजल्ट शो करने लगे। अगर उससे पहले यू स्टॉप वर्किंग हार्ड देन रिजल्ट तो आएगा ही नहीं। Okay, so what do you think कि coaching study is much better or self study is much better, कि या फिर दोनों कंबाइन होना चाहिए प्रिपरेशन के लिए? Of course, it should be a mix of both. It should be something combined, and for every person, it would be a different balance. मतलब जैसे for me, I think I needed guided preparation, और मुझे टीचर्स का लगता था, क्योंकि मेरे साथ ओलंपियाड के भी कुछ कमिटमेंट्स थे, जिसकी वजह से हम्म। I couldn't put a lot of time for doing। तो मुझे टीचर चाहिए थे जो बोलते मुझे कि ये चैप्टर इधर से पढ़ लो, इतना पढ़ लो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फर्स्टली कवर दिस देन मूव ऑन। एक सिखाने वाला चाहिए था, एक हैंड होल्डिंग के लिए टीचर्स चाहिए थे। So for me, I think the balance was more tilted towards the coaching वाला side. But yeah, there can exist students of multiple, मतलब आपकी situations के हिसाब से you need to find that balance. My balance was towards the coaching वाला side, but it depends upon any person. Okay, so that's all about the JEE preparation. Now the next step I want to know कि after you get the results of the JEE, then उसके बाद स्टूडेंट्स को क्या स्टेप्स लेने चाहिए? लाइक एक जो सा काउंसलिंग होता है प्रोसेस सेलेक्टिंग कॉलेजेस को सिलेक्ट करने के लिए, तो आई वांट टू नो कि उसके बाद स्टूडेंट्स को जेईई रिजल्ट्स के बाद क्या स्टेप्स लेने चाहिए उसके बाद? जस्ट दे गॉट द और गुड जोसा काउंसलिंग, हाँ सॉरी एक्चुअली मैंने जोसा काउंसलिंग में ज्यादा, एक्चुअली आई डिडंट डू मच ऑफ जोसा काउंसलिंग, वो पेरेंट्स ने मैनेज किया अच्छा है। आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट। अच्छा यू गॉट द रिजल्ट एंड डायरेक्ट एडमिशन टू द बॉम्बे आईआईटी? हाँ, एंड वो भी पेरेंट्स ने मैनेज किया हुआ, मतलब फॉर्म वॉर्म भरना वो सब उन्होंने किया। आई डिडंट टेक मच अटेंशन टुवर्ड्स दैट। अच्छा, सो एडमिशन प्रोसेस का कोई इंफॉर्मेशन लाइक फॉर द स्टूडेंट्स? जीरो क्लू। ओके ओके, तो ये तो होगा कि लाइक कितना रैंक लाना चाहिए कि वो अच्छे कॉलेजेस में लैंड अप कर पाए स्टूडेंट्स? मतलब इट इज लाइक सबका अपना रिलेटिव, लाइक आपका डेफिनेशन ऑफ अच्छा कॉलेज एंड आपका डेफिनेशन ऑफ क्या है उस पर सब डिपेंड करता है। बट मतलब देखिए, आपको जैसे जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, यू ऑल शुड एम फॉर द बेस्ट थिंग यू कैन गेट, लाइक आईआईटी बॉम्बे सीएस तो सबका ही है। तो जस्ट व्हेन यू मेक एन एम, जस्ट उसको हवा में नहीं बनाना चाहिए, यू शुड वर्क वेरी हार्ड टुवर्ड्स योर एम। समटाइम्स आपकी कैपेबिलिटीज और आपकी सिचुएशन ऐसी होगी कि यू कैन नॉट गेट द बेस्ट थिंग यू एम फॉर। इसकी वजह से व्हाट आई जनरली रिकमेंड इज कि ऑलवेज जस्ट वर्क हार्ड। मतलब जो एम होगा उस तक आप पहुंच ही जाओगे अगर आप वर्क हार्ड करो। बट लाइक कीपिंग लॉफ्टी एम्स एंड जस्ट नॉट वर्किंग टुवर्ड्स इट इज समथिंग व्हिच वुड बी वेरी बैड। मतलब जैसे ऐसा होता है कि इफ यू एम वेरी हाई एंड आपके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आ रहे, तो आप बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो जाते हो एंड आप सोचते हो कि यार आपको कुछ भी नहीं करना है, एंड फिर यू गेट समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी वर्स कंपेयर्ड टू व्हाट यू एम फॉर।
इसके वजह से द एम शुड नॉट बी समथिंग वेरी लॉफ्टी। मतलब अगर इफ यू जस्ट एम एट समथिंग व्हिच इज वे बिलो योर कैलिबर, तो आप लेथार्जिक हो जाते हो, यू डोंट वर्क वेरी हार्ड फॉर योर एम, एंड दैट आल्सो लीड्स यू टू गेट अ कॉलेज व्हिच इज नॉट अप टू योर कैलिबर। जनरली एम रखना इज समथिंग व्हिच मे टर्न आउट टू बी बैड, क्योंकि आप अपना एग्जैक्ट कैलिबर वे नहीं कर पाते इसकी वजह से। तो बेटर थिंग इज कि ऑलवेज जस्ट वर्क हार्ड। मतलब जब आप वर्क हार्ड करोगे, सेल्फ इंप्रूवमेंट पे ध्यान दोगे, यू विल ऑलवेज गेट टू द बेस्ट पॉइंट यू कैन गेट। सो आई थिंक अबाउट इट लाइक दैट। अच्छा, सो यू थॉट अबाउट, यू मतलब आपने ऐसा सोचा था कि यू हैव टू वर्क हार्ड, वट एवर कॉलेज विल गोना कम टू इन योर वे, यू विल गेट इट, राइट? आपको कोई एम नहीं था कि आपको Exactly. बॉम्बे आईआईटी ही जाना है? Exactly. That is how it should work. मतलब हमेशा the focus should be on working hard. Okay, that's nice actually. So जैसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, तो आप मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, उनमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता सकते हैं कि हमको इसमें फोकस करेंगे तो यू विल गेट द गुड मार्क्स? और मतलब मॉक टेस्ट वगैरह लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? प्रीवियस ईयर अगर हमें क्वेश्चन पेपर्स हम देख रहे हैं, तो मतलब कितना ईयर का क्वेश्चन पेपर तक जाना चाहिए, या फिर हम लास्ट टू लास्ट ईयर हम जाते जाए? AIEE करके भी एग्जाम होता था बहुत पहले, तो पीपल लाइक ऑप्टेड फॉर दैट आल्सो कि उसका भी प्रिपेयर करना चाहिए। सो पैटर्न टू पैटर्न चेंज होता रहता है, या फिर हमको पीछे पीछे जाके प्रैक्टिस करते रहना चाहिए? तो लाइक आप एक बार थोड़ा रिसमराइज कर सकते हो व्हाट एग्जैक्टली यू विश टू आस्क? आपने थोड़ी दो तीन चीजें एक साथ पूछी है, तो एक समरी टाइप आप दे देंगे कि क्या क्या, लाइक व्हाट शुड आई आंसर? आई वांट टू नो कि हाँ, आप पूरा पैटर्न बता दीजिए कि PYQs करना चाहिए, मॉक टेस्ट करना चाहिए, फिर अपना इससे प्रिपरेशन, लाइक आपको पहले पूरा रिवीजन अच्छे से, देन आफ्टर दैट PYQ, देन मॉक टेस्ट ठीक लेना है, चाहिए। मैं अपना सब्जेक्ट टाइप प्रिपरेशन का एक जनरल स्ट्रेटजी बताता हूँ मॉक टेस्ट प्रिपरेशन को भी। जैसे फॉर एनी एग्जाम आई यूज्ड टू प्रिपेयर, माय स्ट्रेटजी यूज्ड टू बी लाइक दिस कि जो रीसेंट पीवाईक्यूज है, जैसे जेईई मेंस में तो क्या है, बहुत सारे पीवाईक्यूज है, तो उसके लिए जस्ट एक साल के पीवाईक्यूज मैंने बचा के रखे। बट फॉर एडवांस, जैसे एडवांस में देयर इज एवरी ईयर जस्ट 2 पेपर, तो इसके वजह से 5 साल के पेपर्स आई डिडंट टच। तो जो रीसेंट ईयर्स होते हैं इन जनरल आई डोंट टच, क्योंकि वही मैंने बोला कि एक कॉन्फिडेंस पेपर देने का तभी आता है व्हेन यू अटेम्प्ट दोस पेपर्स एज मॉक टेस्ट, बिकॉज दे आर द बेस्ट रिक्रिएशन ऑफ योर एग्जामिनेशन। इसके से आई डोंट टच दोस पीएचडीज, एक्सेप्ट फॉर दैट जो बाकी के पेपर होते हैं दोस आर योर सॉल्व्स, उस पे यू बिल्ड योर थ्योरी, उस पे यू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर यू। तो जैसे जैसे मैंने बोला कि जेईई में से केस में आई सॉल्व इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पूरा पिछले, मतलब AIEEE सब कुछ सब सॉल्व किया था मैंने जेईई में, क्योंकि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में देयर आर अ लॉट ऑफ थ्योरेटिकल पॉइंट्स व्हिच आर नॉट टॉट इन कोचिंग, एंड कुछ होते जो व्हिच आर टॉट इन कोचिंग बट याद नहीं रहते ना, तो प्रैक्टिस से याद रहती है। लाइक फॉर मी ऑलवेज इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक का क्या होता था कि जितना प्रैक्टिस करो उतना ज्यादा याद रहता है, बिकॉज हर टाइम नोट्स पढ़ते हो, देन क्या हो जाता है, यू गेट अ बिट लेथार्जिक जब नोट्स पढ़ रहे हो, तो कंटिन्यूस जस्ट रीडिंग एंड नॉट यूटिलाइजिंग योर ब्रेन। तो क्या होता है कि आपने 4-5 लाइन पढ़ी, ब्रेन में खाली 2 गए, बाकी 3 उसने छोड़ दी। एक्सटेंसिवली सॉल्विंग से क्या होता है कि वो जो 3 लाइन होते हैं उस पर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो 3 याद रह जाती है आपको, क्योंकि आप जानते हो कि आई स्टक इन दिस, तो इसके वो याद रह जाता है। तो फॉर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एंड लेट्स से रोड लर्निंग वाले सब्जेक्ट आई प्रैक्टिस एक्सटेंसिवली एंड तक करते हैं। मैथ्स फिजिक्स फिजिकल केमिस्ट्री कैसे सब्जेक्ट्स होते हैं कि उसमें कॉन्सेप्ट चाहिए, उसमें सॉल्विंग चाहिए, तो उसमें मैंने क्या किया, लाइक आप सब सॉल्व नहीं करते, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्वेश्चंस डिमांड टाइम, एंड क्वेश्चन को प्रॉपर टाइम अगर देना है तो सारे तो कर ही नहीं सकते। उसके बाद से व्हाट यू प्रायोरिटाइज, जैसे वीक चैप्टर्स आपने निकालो आपके, जैसे एंड उसके रिवर्स ऑर्डर में जाओ, मतलब जो सबसे वीक है उसकी सबसे पहले प्रैक्टिस करो, उसके बाद गो ऑन। तो जैसे मेरा मैथ्स में पीएनसी प्रोबेबिलिटी वाज द वीकेस्ट, तो सबसे पहले आई यूज्ड टू सॉल्व उसके सारे पीवाईक्यूज, मतलब जैसे पीएनसी प्रोबेबिलिटी के पीवाईक्यूज में सॉल्व कर रहा हूँ, उसमें भी एक टॉपिक का एक टाइप का क्वेश्चन 10 बार सॉल्व करने से कुछ फायदा नहीं होने वाला, मतलब एक ही तरह का मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल उसके 10 सवाल सॉल्व कर दोगे तो दैट इज जस्ट यूजलेस। तो उसकी वजह से अगर दिख रहा है कि इट इज सेम, मतलब लॉजिकली उतना ये जो ऊपर किया या फिर ये भी हो ही जाएगा, आई यूज्ड टू स्किम थ्रू द क्वेश्चंस कि जो मुझे लग रहा है टफ है, जो मुझे लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, उसको प्रॉपर्ली सॉल्व करो, फाइनल आंसर तक निकालो, नो कैलकुलेशन एरर्स, नो सिली एरर्स, प्रॉपर्ली आंसर निकालो। एंड सिमिलरली फॉर फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई यूज्ड टू सॉल्व क्वेश्चन प्रॉपर्ली, क्योंकि सिली एरर्स कब करने होते हैं। जैसे ऐसा होता है कि अगर आप पूरा टाइम स्किम थ्रू करते रहोगे, देन what happens is that you in the examination you don't have something like exam mode, सीधा ऑन कर दो, silly errors होंगे, calculation errors होंगे अगर आपने solving के वक्त उनको properly solve नहीं किया। तो उसकी वजह से while solving as well you should solve some questions just to avoid your silly errors and calculation errors. Apart from that, silly errors भी जैसे मेरे होते थे, they were like of 2 kinds. One was repetitive errors, जैसे dilution होता है, dilution में volume change भूल गए मोल कॉन्सेप्ट में, वो कंसिडर करना।
तो आई न्यू दीज वर सम रेपिटेटिव सिली एरर्स। आईटीएफ में डोमेन का इश्यूज होता है, उसको हमेशा इग्नोर करना है। तो दीज रेपिटेटिव सिली एरर्स को कैसे कर करोगे आप? जब क्वेश्चन पढ़ते हो लुक फॉर दैट। दिख रहा है आईटीएफ का क्वेश्चन है, वापस ध्यान से पढ़ो, डोमेन का इश्यू हो सकता है। दिख रहा है मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ढंग से सुनो कि डाइल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देन रैंडम सिली एरर्स होते हैं, जैसे कि प्लस प्लस की जगह माइनस कर दिया एंड डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन कर दिया। वो तो कर्व करना मैं अभी तक नहीं सीखा हूँ, वो तो आजकल भी होते हैं यहाँ पे एग्जाम्स में। तो हाँ, तो जनरली दीज आर माय टेक्निक्स फॉर ओवरकम सिली एरर्स। हाँ, तो यही प्रैक्टिस मॉक टेस्ट सिली एरर्स का मैं। Okay. One more thing, there are students like they want to know that they need to prepare for the JEE advanced just after the JEE main. So like how do you like कैसे हम steps उसके आगे क्या steps होंगे? Like after the JEE mains you need to like start for preparing for the JEE advanced, or you need to wait for the some time, or then you need to prepare for the JEE advanced. Like what's the yeah. तो जैसे मेरा प्रिपरेशन था, आई नेवर डिस्टिंग्विश एडवांस एंड मेंस प्रिपरेशन टिल नवंबर। बट ऐसा बहुत बार हो सकता है कि आप लोग वो डिस्टिंग्विश करते हो, बिकॉज समटाइम्स एडवांस तक का प्रिपरेशन इज नॉट दैट केपेबल फॉर यू टिल यू प्रिपेयर टिल मेंस, या मेंस क्लियर नहीं होता है। तो आई गेस मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि जैसे जब मेरा मेंस का टाइम हुआ नवंबर टू टिल द फर्स्ट मे, उस टाइम मैंने इतना एक्सपेंसिवली मेंस किया था कि आई सॉर्ट ऑफ फॉरगॉट ऑल माय एडवांस कॉन्सेप्ट, मतलब एडवांस रिलेटेड जो भी चीजें पढ़ी थी वो आई हैडंट मच रिकॉल ऑफ दैट। बट मेंस की वजह से क्या होता है कि जो सारे टॉपिक्स थे, सारे एक्सटेंसिव सिलेबस चैप्टर्स थे, तो आई गॉट अ लॉट ऑफ बेसिक प्रैक्टिस। एक्सटेंसिव प्रैक्टिस हुआ, बेसिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो उसकी वजह से फिर फॉर एडवांस आई डिडंट हैव टू कवर न्यू सिलेबस ना, सब तो पढ़ रखा है। एंड बेसिक प्रैक्टिस भी अच्छी डेवलप हो गई थी, मींस की पीवाईक्यूज सॉल्व करके आई हैड डेवलप्ड अ लॉट ऑफ नाइस प्रैक्टिस फॉर द बेसिक क्वेश्चन। तो जैसे ही मेंस का फर्स्ट फेज खत्म हुआ, आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन फॉर एडवांस। उसमें अब मुझे नया नहीं पढ़ना था, जो मैंने पढ़ रखा था उसको ही रिवाइज करना था। एंड दैट वाज वे सिंपलर नाउ, क्योंकि मैंने एक मेंस की प्रिपरेशन के लिए वो अच्छे से बहुत बार रिवाइज किया था। सो नाउ आई वाज वेरी थरो विद इट। अब मैं क्या किया, जैसे एडवांस के लिए व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, आई जस्ट पिक्ड अप सम गुड बुक्स एंड टीचर्स ने जो अच्छा मटेरियल दिया, लाइक जो वर एडवांस रेलेवेंट क्वेश्चन जिसमें से टफ क्वेश्चन थे, आई यूज्ड टू सॉल्व थ्रू देम, गो थ्रू देम, एंड कुछ अच्छे पॉइंट्स मिला, आई यूज्ड टू ऐड देम टू माय शॉर्ट नोट्स। तो जैसे केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स बनाए थे मेन से रिलेटेड, उसमें ये एडवांस के अच्छे अच्छे पॉइंट्स डाल दिए। उसकी वजह से क्या होता था कि अब जो रिविजन था केमिस्ट्री का, आई वाज डूइंग वन डे में एक दिन ऊपर केमिस्ट्री रिवाइज हो रहा था। तो इट वाज वेरी हेल्पफुल। सिमिलरली फॉर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो एडवांस एंड मेंस का प्रिपरेशन में जो डिस्टिंक्शन है वो बस लेवल ऑफ क्वेश्चंस का है। तो ऑफ कोर्स मेंस के जैसे ही मेंस खत्म होता है, यू कैन जस्ट पिक अप टफर क्वेश्चंस एंड उनको स्टार्ट सॉल्विंग इफ योर टारगेट इज एडवांस, एंड दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। एंड वो हो जाता है, लाइक पूरा टाइम अगर आपने नवंबर दिसंबर मेंस प्रिपरेशन की है, देन जो मेंस वन से एडवांस तक का टाइम है, इफ यू सॉल्व गुड क्वेश्चंस यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर एडवांस, कर सकते हैं आप। Okay. तो एज आपने बोला कि आपका लाइक ड्रीम नहीं था एज इन कि बॉम्बे आईआईटी में जाना, यू जस्ट वांटेड टू हार्ड वर्क। तो देयर आर स्टूडेंट्स जो मतलब ड्रीम लेके चलते हैं कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए चाहिए, एंड वी वांट टू प्रिपेयर लाइक दैट। तो व्हाट कीप यू ग्राउंडेड? क्या ऐसी हैबिट थी जो आपको आपकी जर्नी में आपको सक्सीड किया और आप ग्राउंडेड रहे? आपको लगा कि ओके आई नीड टू वर्क हार्ड और मुझे जो कॉलेज मिलेगा आई विल एक्सेप्ट दैट। लेकिन जो स्टूडेंट्स है जो अपने माइंड में रखते हैं कि हाँ आई वांट टू टारगेट दिस कॉलेज और मुझे इसी कॉलेज के लिए प्रिपेयर चाहिए, और अगर उनको अच्छा कॉलेज मिल भी जाता है दे आर नॉट सेटिस्फाइड कि वो कॉलेज नहीं मिला। तो व्हाट कीप यू ग्राउंडेड? लाइक यू आप कुछ हैबिट्स कुछ मेरे केस में मुझे हाँ, ग्राउंडेड रखने के लिए तो बहुत सारी चीजें थी। इनफैक्ट मुझे एट मेनी टाइम्स मोटिवेशन के लिए चीजें चाहिए थी। बिकॉज देखिए, ग्राउंडेड का क्या तरीका, जब आप मॉक टेस्ट देते हो, एक्सटेंसिवली मॉक टेस्ट देते हो, एंड यू हैव अ वेरी नाइस पीयर ग्रुप। जैसे मेरा केस था, आई हैड अ वेरी नाइस पीयर ग्रुप। लाइक जो मेरे बाकी बैचमेट्स थे, दे वर लाइक एआईआर 4 7 41 44, हाँ ये रैंक आए हमारे, लाइक द रेस्ट ऑफ माय बैचमेट्स के। तो ऑल ऑफ देम वर वेरी वेल प्रिपेयर्ड। इसकी वजह से ग्राउंडेड रहना बनता ही था, क्योंकि हर मॉक टेस्ट में वो लोग बहुत ऊपर होते थे या मैं कभी ऊपर होता था। तो दैट पॉइंट्स आउट टू अ वेरी नाइस थिंग कॉल्ड पीयर ग्रुप। मतलब जो पीयर ग्रुप होता है आपका, दैट शुड बी वेरी गुड। मतलब इफ यू आर नॉट इन अ वेरी गुड पीयर ग्रुप, यू आर द बेस्ट इन योर ग्रुप और यू आर द वर्स्ट इन योर ग्रुप, आपका बहुत खराब हो जाएगा। इफ यू आर द बेस्ट इन योर ग्रुप, यू जस्ट कैनॉट लर्न, यू कैनॉट बी बेटर देन व्हाट यू आर। बट एंड इफ यू आर वर्स्ट इन योर पीयर ग्रुप, डिमोटिवेशन से आप लर्निंग करना बंद कर जाओगे। यू शुड बी एट पार विद योर पीयर ग्रुप। आपका पीयर ग्रुप ऐसा होना चाहिए कि उनसे आप सीखो एंड उनको आप सिखाओ। जैसे इन माय पीयर ग्रुप, आफ्टर वन पॉइंट इट वाज ऐसा कि मैं उनसे ही डिस्कस करता था चीजें, लाइक टीचर्स से ज्यादा आई वाज मोर कंफर्टेबल इन डिस्कसिंग डाउट्स एंड डूइंग डिस्कशंस अमंग माय पीयर्स, क्योंकि ज्यादा कंफर्टेबल होता है ना दोस्तों के साथ। तो इसकी वजह से पीयर्स आर समथिंग व्हिच हेल्प यू
peers and mock tests are something which help you keep grounded and in fact motivated as well. जैसे कभी नंबर कम आते थे तो वही लोग होते थे जिनसे क्रिकेट खेल लिया या बोल दिया कि कुछ नहीं होता चलो यार खेलते हैं. तो those were like the helpful friends. Okay, so some short question, like what's your biggest learning in JEE main preparation? Biggest learning हाँ मतलब वही that working hard without getting demotivated by setbacks. Okay, बहुत what's मुश्किल होता है मतलब लोग बहुत commonly set line होती है but it is very tough to follow this. मतलब जब setback आता है hard work करना is just impossible. बहुत मुश्किल होता है. But I learned it during these 2 years of journey. Okay, so your favorite subject, like physics, chemistry, maths, your favorite? Mathematics was ज़्यादा पसंद. Okay, so what is the one biggest mistake that students are more keen to follow in the JEE main preparation? जो most of the students एक mistake करते ही करता है. What do you think? Exactly. वही रिजल्ट वर्क हार्ड नहीं करना मतलब जब भी रिजल्ट कुछ खराब हो गया कुछ तो बस प्रिपरेशन ही बंद कर दो. सब लोग से होता है because it is human tendency. It is like whenever you don't see results, you just stop working hard. So keep working hard even if you don't see your nice results. Okay, so let's end this interview with the final message for the students who are like scared with the like JEE mains exam is coming and they are very scared like कैसे होगा क्या नहीं होगा. उनको एक टिप दे दो, एक motivational speech दे दो या something like that. हाँ या सो मोस्टली अगर टिप देना होगा तो आई वुड से कि जितना आप लोगों ने अभी तक किया होगा लाइक 2 years of preparation दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी इनफ एंड बहुत ज्यादा केपेबल आपको बनाता है टू क्रैक द जेईई मेंस एग्जामिनेशन अप टू योर कैलिबर. तो नाउ वरिंग अबाउट डूइंग समथिंग न्यू वुड जस्ट स्पॉइल योर प्रिपरेशन. मतलब कुछ नया टच ही नहीं करना. जितना अभी तक पढ़ा है उसको प्रॉपर्ली रिवाइज करो. दैट इज आल्सो वेरी टफ एंड उसको अगर आप कर पाते हो देन यू इटसेल्फ हैव वन अ वेरी बिग बैटल. जितना आपने अभी तक पढ़ा अगर आप पूरा रिवाइज कर पाते हो मेंस के एग्जाम से पहले दैट इन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग थिंग. इस वजह से राइट नाउ यू शुड नॉट फोकस ऑन एनीथिंग न्यू. जितने शॉर्ट नोट्स बनाए जितने क्वेश्चंस ट्राई किए उसको प्रॉपर्ली एक बार दो. अपार्ट फ्रॉम दैट केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़ो, डेली पढ़ो. लाइक एनसीईआरटी गो थ्रू करो, स्किम थ्रू करो. जो रटने वाले चैप्टर्स है उनको तो प्रॉपर्ली करो. जैसे पीओसी कोचिंग से ज्यादातर पढ़ाते नहीं है एंड उससे जेईई में हमेशा 1 या 2 सवाल पूछता रहता है तो उसको अच्छे से देखना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट फिजिक्स में सेमीकंडक्टर्स है उसको अच्छे से देखना चाहिए. एंड मैथमेटिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री एंड जो सॉल्विंग टाइप की चीजें उनका थोड़ा प्रैक्टिस यूज मत करो. उसके लिए क्या कर सकते हो लाइक पीवाईक्यूज है या फिर बेसिक कोई शीट्स उठा के उनके जस्ट क्वेश्चंस दिन में लाइक गिव 1.5 आवर्स टू सॉल्व जस्ट टू स्टे इन प्रैक्टिस. या फिर एक पीवाईक्यू दे दो जस्ट टू स्टे इन प्रैक्टिस. बट या लाइक जस्ट डोंट गिव पीवाईक्यूज टू क्लोज टू द एग्जामिनेशन. जैसे 3 दिन पहले तो कोई मॉक टेस्ट देना ही नहीं चाहिए एग्जाम से क्योंकि दैट इन फैक्ट हार्म्स मोर देन हेल्पिंग. तो या just and stay motivated. Exam mein you will do your best. Okay. So Sanidhya, thank you so much for being so open with me, and you have proved that being a JEE main topper isn't about being a robot. It's about being smart and being hardworking. As you said, you do hard work, Thank you you'll very get much. what you get. Thank you very much. Yeah, thank you so much. It was nice speaking to you guys.